Hello students, as you know, this is the video lecture series about the partnership final account. Today I came with one more lecture regarding adjustments in partnership final account. In last 3 video lectures, you have learned many adjustments. To remember all those adjustments with effect, you must watch these videos again and again so that it will help you to understand and clear your doubt. Today, the adjustments which you will learn are not those adjustments which you normally get below the trial balance. So today I will explain some adjustments which are known as hidden adjustments. Hidden adjustments are those adjustments which are not given below the trial balance but it is hidden in the trial balance only. In trial balance with some account, if some additional information is given, then you must consider and understand that additional information and must be given proper to effect like other adjustments. Adjustments given in the trial balance and not below the trial balance are known as hidden or secret adjustments. They also require same treatment as normal adjustment. ये एडजस्टमेंट को भी आपने बाकी के एडजस्टमेंट के जैसे नॉर्मल 2 इफेक्ट देनी है. सो लेट्स स्टार्ट. First is expenses paid for 10 months. With some expenses, if it is mentioned paid for 10 months, then this is your hidden or secret adjustment. Because while preparing final account, we must consider 1 year expense and 1 year income. And as you know, in a year there are 12 months. So if any expenses are paid for 10 months, it means 2-month expenses are payable. 2 महीने का expenses pay करना बाकी है. बिकॉज फाइनल अकाउंट हमेशा 12 मंथ के एक्सपेंस और 12 मंथ की इनकम कंसिडर करता है. आपने 12 मंथ्स के इनकम 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस लेने हैं, बट यहाँ पर दिया है कि कोई एक्सपेंस 10 महीने के लिए पे हुआ है. इट मीन्स 2 मंथ का एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड फॉर 10 मंथ रुपीज़ 10,000. 10 मंथ के लिए 10,000 पे हुआ है, तो आपने 2 मंथ्स का रेंट फाइंड आउट करना है बिकॉज 2 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग. लेट्स सी द कैलकुलेशन. रेंट फॉर 10 मंथ इक्वल टू 10,000. सो देयरफॉर फॉर 2 मंथ हाउ मच दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो आउटस्टैंडिंग रेंट इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, you will get 2,000. First effect will be given in profit and loss account debit side, add in rent. Outstanding you have to always add in that particular expense or income. Outstanding जब भी होगा आपने हमेशा उसको ऐड करना है. इसलिए first effect profit and loss account debit side, add in rent. Second effect balance sheet liability side, because outstanding expense is one kind of liability. That's why it will be recorded in liability side. You can see in profit and loss account debit side to rent, inner column 10,000 is recorded. Add outstanding rent which you got 2,000, and in outer column you have to write 12,000. In balance sheet liability side, outstanding rent 2,000. Second adjustment is insurance premium paid rupees 12,000 for 1 year ending 30th June 2019. The insurance premium will be always paid for 1 year, and here it is mentioned that this year is ending on 30th June. इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 1 साल के लिए पे होता है, और यहाँ पर आपको बताया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का साल एंड हो रहा है 30th जून को. अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च, बट बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर 31st मार्च को एंड हो रहा है. देयरफॉर यू हैव टू record insurance premium expense up to 31st March only.
आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट 31 मार्च तक का ही लेना है, एंड अदर दैट इज अप्रैल मई एंड जून इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पर 31 मार्च तक का ही रिकॉर्ड होगा, उसके बाद के जो 3 महीने हैं अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड करना है। Insurance premium is paid up to 30th June and accounting years and on 31st March 2019. It means 3-month insurance is prepaid. 3 महीने का प्रीपेड है, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने का इंश्योरेंस आपके लिए प्रीपेड है। Let's see the calculation. Insurance premium for 12 month equal to 12,000. Therefore, for 3 month that you have to calculate. So prepaid insurance equal to 12,000 multiplied by 3 upon 12, you will get 3,000. First effect, profit and loss account debit side less from insurance premium. Prepaid को हमेशा आपने less करना है. And second effect, balance sheet asset side, any prepaid expense will be recorded always on the asset side of the balance sheet. So in profit and loss account debit side, to insurance premium 12,000 less prepaid insurance 3,000, and in outer column the amount is 9,000. 12,000 में से 3,000 आपने माइनस करना है, और 9,000 जो 31 मार्च तक का इंश्योरेंस का प्रीमियम का एक्सपेंस है वो आपने रिकॉर्ड करना है। Asset side, you can see in balance sheet asset side, prepaid insurance 3,000. Next is advertisement paid for 5 years rupees 20,000. यहाँ पर आपको दिया है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5 years के लिए पे हुआ है, बट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल बी कंसिडर फॉर 1 year एंड अदर 4 year एक्सपेंस विल बी प्रीपेड। आपने 1 साल का ही लेना है और बाकी के 4 साल का आपके लिए प्रीपेड है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2019। WEF का फुल फॉर्म है विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई है 1 October से। अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 March 2020, और आपका कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 March 2020 को। WEF इट मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, इट मीन्स एक्सपेंस will be calculated from 1 October to 31 March. आपने 1 October से ही एक्सपेंस कैलकुलेट करना है टिल 31 March. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया आपके लिए 6 month, एंड फॉर 6 month एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल बी कंसिडर। 6 महीने का ही आपने कंसिडर करना है और बाकी का आपके लिए हो जाएगा प्रीपेड। So calculation is 5 year equal to 20,000. So 1 year equal to how much, that you have to find out. पहले आप 1 साल का find out करो। Here 1 year equal to 20,000 multiply by 1/5. 1/5 से multiply करने पर आपको 1 साल का मिल रहा है 4,000. But here you have to consider expense for 6 month. 6 महीने का ही लेना है, इसलिए 6 month equal to 4,000 divided by 2, that you will get 2,000. यहाँ पर 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है 2,000. So 20,000 minus 2,000 equal to 18,000 is prepaid advertisement expense. आपने 6 महीने का लिया है 2,000 और बाकी का अमाउंट आपके लिए हो जाएगा प्रीपेड। फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड आपने हमेशा लेस करना है। ओनली करंट ईयर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी कंसिडर, सिर्फ करंट ईयर का ही आपने एक्सपेंस दिखाना है। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन असेट साइड ओनली। आपने हमेशा उसको असेट साइड दिखाना है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड यू कैन सी 2 एडवर्टाइजमेंट 20,000, जो पूरा 20,000 पे हुआ था वो आपने इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो एडवांस में प्रीपेड हुआ है
जो आपने फाइंड आउट किया था 18,000, दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड एंड इन आउटर कॉलम इट विल बी रिकॉर्डेड 2,000। जो आपने 6 मंथ का 2,000 फाइंड आउट किया था वही आपका आउटर कॉलम में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 18,000। प्रीपेड का जो अमाउंट था वो आपने असेट साइड दिखाना है एंड यू हैव टू रिकॉर्ड एज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एंड अमाउंट इज 18,000। रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ। हियर फर्स्ट वर्ड इज रेंट रिसीव्ड, इट इज एन इनकम। रेंट रिसीव्ड जो है वो इनकम है फॉर 11 मंथ, मतलब 11 महीने का ही रेंट मिला है। इट मीन्स 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का रेंट लेना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ रुपीज़ 11,000। 11 महीने के लिए 11,000 रुपये मिले हैं। इट मीन्स 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। कैलकुलेशन इज रेंट फॉर 11 मंथ इक्वल टू 11,000. So for 1 month equal to how much, that you have to find out. So outstanding rent equal to 11,000 multiplied by 1/11, that you will get 1,000. आपने 11 महीने का 11,000 है तो 1 महीने का कितना वो फाइंड आउट करना है, तो आपको 1 महीने का मिल रहा है 1,000. फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड इन रेंट। आउटस्टैंडिंग आपको हमेशा ऐड करना है और ये रेंट रिसीव्ड इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड इन रेंट। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, आपको 1,000 रुपीज़ लेना बाकी है, इसलिए उसका रिकॉर्ड होगा असेट साइड। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय रेंट इनर कॉलम 11,000, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 एंड टोटल इज 12,000 विच इज रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम। आपका बाय रेंट 11,000 जो 11 मंथ के लिए मिला है और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपने 1 मंथ का फाइंड आउट किया था 1,000, दोनों को प्लस करके आपने पूरे साल का रेंट का अमाउंट 12,000 आउटर कॉलम में दिखाना है। एंड सेकेंड इफेक्ट, इन बैलेंस शीट असेट साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, जो 1,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है वो आपने असेट साइड रिकॉर्ड करना है। 10% loan taken rupees 80,000. So whenever with account some percentage is mentioned, it means it indicates rate of interest. यहाँ पर आपको दिया है 10% लोन टेकन। ये जो 10% दिया है वो आपको बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन जो लिया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बोरोड ऑन 1 जनवरी 2019, बोरोड मतलब लिया है, लोन कभी लिया है तो 1 जनवरी 2019 को लिया है। अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2019 और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। लोन लिया है जनवरी में, अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है मार्च में, इट मीन्स जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। इट मीन्स 3 मंथ इंटरेस्ट विल बी पेएबल, पे करना बाकी है 3 महीने का इंटरेस्ट। लेट्स सी द कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, लोन टेकन पर कितना इंटरेस्ट है वो आपने कैलकुलेट करना है। 80,000 जो लोन टेकन का अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 10/100, जो आपको पहले दिया था 10%, इसलिए आपने मल्टीप्लाई करना है 10/100 से, मल्टीप्लाई बाय 3/12 बिकॉज 3 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, इसलिए 3/12 आपको मिला है 2,000। सो फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इंटरेस्ट विल बी पेएबल, दैट्स वाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड इन लोन टेकन, जो आपने लोन लिया है उसमें आपने ऐड करना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अदरवाइज यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों ही चलेगा। आपने अमाउंट रिकॉर्ड करना है 2,000। इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, 10% लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 19, 80,000, इनर कॉलम में लिखना है 80,000 प्लस ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल, जो इंटरेस्ट पे करना है जो आपने अभी कैलकुलेट किया
2000. That will be added and total amount will be recorded in outer column, that is 82,000. ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखोगे जो 82,000 है. %16 इन्वेस्टमेंट. अगेन इन्वेस्टमेंट के आगे आपको दिखाया है 16% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ₹1,00,000, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 16% इंटरेस्ट मिलेगा. परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18. परचेस हुआ है 1 अक्टूबर को. अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च और कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 19 को कंप्लीट हो रहा है. इसका मतलब अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा. इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज असेट फॉर द बिजनेस. इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस के लिए असेट होगा. इट मीन्स 6 मंथ इंटरेस्ट विल बी रिसीवेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2019. अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर. कैलकुलेशन. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 16/100. क्योंकि 16% दिया था इसलिए आपने 16/100 लिखना है. मल्टीप्लाई बाय 6/12. 6 महीने का गिनना है इसलिए 6/12 से मल्टीप्लाई करना है. सो यू विल गेट अमाउंट 8,000. आपको 8,000 रुपीज़ मिलेगा कैलकुलेशन के बाद. सो फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज वन काइंड ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस. सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड एड इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा और ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए उसको आप करोगे ऐड. Profit and loss account credit side by interest on investment 8,000 and in balance sheet asset side 16% investment. Inner column 1,00,000, add interest on investment 8,000. The total amount is 1,08,000 which is recorded in outer column. आपने जो 16% इन्वेस्टमेंट असेट साइड रिकॉर्ड किया है उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस करना है. प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट आपने रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ₹50,000. 10%, अगेन 10% is the rate of interest. Government bond is one kind of investment, that's why it will be recorded on the asset side. गवर्नमेंट बॉन्ड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है और वो आपने रिकॉर्ड करना है असेट साइड. और जो 10% दिया है वो 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट. हियर डेट इज़ नॉट गिवन. यहाँ पर डेट नहीं दिया है ऑन विच डेट दिस बॉन्ड्स आर परचेज, वो नहीं दिया है. इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर. ये अज्यूम करना है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड शुरुआत से है और इसीलिए आपने पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100. 10% है इसलिए 10/100 से, और क्योंकि डेट नहीं दिया है, कभी परचेस हुआ है, इसलिए आपने इस पर पूरे साल का लेना है. एंड अमाउंट यू विल गेट इज़ 5,000. आपको जो अमाउंट मिला है वो है 5,000. First effect, profit and loss account credit side, because government bond is an investment and interest which company will get, that is the income for the company, and that's why it will be recorded on the credit side of profit and loss account. जो गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी के लिए इनकम है और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा. सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड एड इन गवर्नमेंट बॉन्ड. गवर्नमेंट बॉन्ड जो आपने असेट साइड रिकॉर्ड किया है उसमें आपने ऐड करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 5,000 एंड इन बैलेंस शीट असेट साइड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड. इनर कॉलम यू हैव रिकॉर्डेड 50,000 जितना आपने इन्वेस्ट किया है, प्लस और ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का अमाउंट आपने उसमें ऐड करना है विच यू गॉट 5,000. सो टोटल अमाउंट 55,000 विल बी रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम. दोनों को प्लस करके आपने आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट लिखना है.
So in this lecture you have learned some hidden adjustments. From next video I will start with the sum. You will learn how to solve the sum for the partnership final account.